Unacademy. Let's crack it. Hello everyone. We'll start in a couple of minutes. Hello everybody. Chalo, let's start. Okay, time is हो गया ना 3:30 तो हो गया है. I believe 3:30 तो हो गया सर. 3:29 हो गया है. Let's begin. बाकी के बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे. So guys, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो हाय हेलो व्हाटएवर यू विश टू राइट. लिख दो hello hi anything you wish to. This will let me know that I'm perfectly audible, which I know I am. चलो बच्चा पार्टी, write it down. Hi or hello. Write anything in the comment box, whatever you wish to. Welcome Vishakha, welcome Tanmay. Okay, so आप लोगों के पास वो बुक है ना जेरोक्स वाली जो मैंने दी थी, शायद सबके पास है ना? बोलो हाँ जी. We have that sir. Awesome. ठीक है. तो as far as I can remember, we had solved 15 questions in class. We did solve 15 questions in class, right? और आपको होमवर्क कितना दिया था? आपको होमवर्क दिया था 16 to 20 का. बोलो इससे 16 to 20 was your homework. Okay, तो और होमवर्क के लिए मैंने आपको क्या बोला था? I won't be giving you any extra time. I won't be giving you any extra time. So this we started with percentages. Percentages से we started with percentages की हमने theory complete करी थी. And then mixed classwork के questions करे थे. Classwork में we had 1 to 20 questions, out of which 15 questions were covered. 5 आपको homework दिए थे. And मैंने बोला था इसके लिए आपको time नहीं दूंगा. So we will solve these 5 homework questions straight away, and then we will start with ratio and proportion. Okay, we will start with ratio and proportion. Got it? Then we will start with ratio and proportion. चलो, ratio and proportion की theory करेंगे and then उसकी practice करेंगे. And we will conduct classes hereafter online और 3:30 PM से लेके 10th of August तक will be done with the entire syllabus. चलो, so this is question number. यहाँ तक हमने कर लिया था. 15 तक हमने क्लास में कर लिया था. 15 का आंसर था 60%. ओके, और मैंने बहुत स्ट्रांगली बोला था कि आपने एक बार होमवर्क करके आना है. तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 16. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 16. आई होप आपने इसको सॉल्व किया था. आई होप आपने इसको सॉल्व किया है. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस आउट. 16, 17, 18, 19, 20 फर्स्ट एंड देन वील मूव टू द थियरी पार्ट. ओके, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, परफेक्टली क्लियर टू यू, एक बार लिख दो #समझा in the comment box, and then we will start with the discussion part. अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, what I'm trying to say, mention #समझा in the comment box, and then we will start with the discussion part. Very nice. चलो guys, देखो, so this was the question. इसमें क्या था? इसमें given था, at an election the candidate who got 56% of votes cast won by 144 votes. ठीक है, तो चलो let us say there is some election में 100x votes थे. votes cast कितना? votes cast 100x ले लेते हैं. number of votes, जितने votes डाले गए उसको 100x ले लेते हैं. ठीक है, votes cast
इलेक्शन में टोटल 100x वोट डाले गए। ओके, नाउ 100x में दो लोग थे, एक था मेरा ए, एक था मेरा बी। A got 56% of the votes. A got 56% of the votes. So B will get sorry, B will get 44% of the votes. A got 56% of the votes. B got 44% of the votes. What is 56%? 56% is 56x. 44% would be 44x. So ये हो गया A और B के वोट्स, ठीक है? ओके ओके, चलो। Now this guy won. ये जो बंदा है, this guy won by 144 votes. So can we write A minus B is 144, or I can write 56x minus 44x is 144, x is 12. तो वोट्स कास्ट कितने हो जाएंगे बेटा? 1200 है ना? कितने वोट पड़े? 1200 वोट पड़े। ओके, यहां तक क्लियर है? अब पूछा क्या है आपसे? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट if only 80% of the people cast their vote. So इतने लोगों ने तो वोट दिया है आपको वोटिंग लिस्ट में। अभी सपोज वोटिंग लिस्ट में जितने लोग हैं, वोटिंग लिस्ट में जितने लोग हैं, टोटल वोटिंग लिस्ट में जितने लोग हैं, सबने वोट नहीं दिया। 1200 लोगों ने वोट दिया, 1200 लोगों ने वोट दिया और बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया। आई डोंट नो कितने लोग, वाई लोगों ने वोट नहीं दिया। आपको ये टोटल अमाउंट बताना है, टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे। बट इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट 80% ऑफ द पर्संस डिड कास्ट देयर वोट। मतलब दिस क्वांटिटी इज 80% ऑफ दिस। ये 80% और ये 20% लोगों ने वोट नहीं दिया था। 80% लोगों ने वोट दिया था। सो आई कैन प्राउडली राइट 80% ऑफ वोटिंग लिस्ट इज 1200। जो 1200 लोग हैं, these much people have voted actually. Okay, so this 1200 is nothing but 80% of voting list. So final answer would be 80% of total voting list is 1200 and total voting list में कितने लोग हो जाएंगे? 1500. I mean you need to solve this. This would be a final answer, 1500. समझा है आपको? This was the explanation to. अच्छा, you guys can watch this video again and again. अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझा, सेशन खत्म होने के बाद भी you can click on the link and you can watch this video. This would be available as a recording, lifetime. Okay, this would be available for you as a recording, lifetime. तो नहीं समझा तो आप सेशन के बाद भी इसको वापस देखकर समझ सकते हो। Shall we move to the next question? चलो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? In a class, 25% of the students were absent for exam. Okay, 30% failed by 20 marks, right? 10% just passed because of the grace marks of 5. Awesome. Find the average score of the class if the remaining students scored an average of 60 marks and the passing marks are 33. Passing marks are 33. चलो देखते हैं, आ जाओ। लेट अस से एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स थे। अच्छा, आपको निकालना क्या है छोटू? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है
एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास, आपको निकालना है एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। और एवरेज कैसे निकलता है बेटा, आप एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज स्कोर निकालना है। हाउ विल यू फिगर आउट एवरेज? एवरेज स्कोर वुड बी टोटल स्कोर upon number of students, average score would be total score upon number of students। बोलो यस सर। बच्चों देखो आपको मेरी आवाज आ रही है ना गाइस, तो यस नो कुछ भी लिखते रहो इन द कमेंट बॉक्स, राइट, कुछ भी लिखते रहो। सो मुझे इस क्वेश्चन में निकालना था एवरेज स्कोर, and how we can calculate average score. To figure out average score, I must be aware of total score of all the students divided by number of students। ठीक है, तो ध्यान दो, तो हमारा टारगेट वही है, टोटल स्कोर निकालना एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना। let us assume that number of students are let us assume that number of students are 100 or 100x। let's assume that 100x is the number of students, 100x is the number of students। ओके, अब इन 100x स्टूडेंट्स का एग्जाम का पासिंग मार्क्स क्या गिवन है? एग्जाम में एक पासिंग मार्क्स भी गिवन है। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? एग्जाम में पासिंग मार्क्स गिवन है 33। उमंग लैग नहीं बेटा, एक बार रिफ्रेश करो। पासिंग मार्क्स गिवन है 33। अब इन 100x स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट है? 25% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो जो बच्चे एब्सेंट थे, जो बच्चे एब्सेंट थे, एब्सेंट वाले बच्चे, ठीक है, 25x बच्चे एब्सेंट थे, इनको कितना मार्क्स आया होगा? सबको इनको कितना मार्क्स मिला होगा? जो बच्चे एब्सेंट थे उन सबको 0 मार्क्स मिला होगा। 25 बच्चों का हर बच्चे को जो एब्सेंट था उसको 0 मार्क्स मिला होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 30% स्टूडेंट्स फेल्ड बाय 20 मार्क्स। 30% मतलब क्या होता है इसका? इसका 30% कितना हो जाएगा गुरु? 30% वुड बी 30x। ओके, ये स्टूडेंट फेल हो गए, ये स्टूडेंट ये फेल वाले हैं। कितने बच्चे फेल हुए? 30%, मतलब 30x स्टूडेंट्स ये फेल हो गए। कितने मार्क्स से? कितने मार्क्स से? 20 मार्क्स से। मतलब इस हर एक बच्चे को कितना आया है? पासिंग मार्क्स से 33, फेल हो गया 20 मार्क्स से। हर एक बच्चे को कितना आया इसमें? हर बच्चे ने 13 स्कोर किया है, हाँ या ना? 33 पासिंग मार्क्स था, 20 मार्क्स से फेल हो गए ये बच्चे, सबने 30 स्कोर किया। ओके, एंड और भी बच्चे हैं, 10% just passed because of grace marks। 10% of the students they just passed because of the grace marks। grace marks से 10% स्टूडेंट पास हुए। ओके, 10% मतलब 10x। ठीक है, और उनको ग्रेस मार्क्स कितना मिला? 5। मतलब उनको आया था 28, उनको आया था 28, 5 मार्क्स ग्रेस देके मार्क्स को 33 कर दिया गया। ग्रेस मार्क्स 5 मार्क्स ग्रेस देके मार्क्स को 33 कर दिया। उनके मार्कशीट पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? उनके मार्कशीट पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? 33। उनके मार्कशीट पे 33 रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ना। एक्चुअली दे स्कोर्ड 28, लेकिन ग्रेस दिया 5 मार्क्स का एंड दे वर मेड टू पास। सो द actual marks reflecting on mark sheet would be 33, just pass। and बाकी के बच्चे were good students, बाकी के बच्चे were good students, they
passed the exam. कितने बच्चे बच गए? 100x में से 25 and 10 35 and then 65. 35x बच्चे बच गए. 35x बच्चे बच गए. इनको कितने मार्क्स मिले? एवरेज ऑफ 60 मार्क्स. इनको मिले एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, राइट. तो अब हमें निकालना है एवरेज. ये हो गया मेरा ब्रेकअप, इंटायर ब्रेकअप. गॉट इट. तो एवरेज स्कोर क्या होगा? टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. व्हाट इज टोटल स्कोर? दिस इज 25 into 00. 25 into 00. This is 30 into 13, 390x. This is 330x. And 65 plus ये कितना होता है? 3210. 2100x. बोलो यस सर. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100x. टोटल मार्क्स बताओ. टोटल मार्क्स ऐड करो इनको. 2100x, 2400x, 2700x, 2820x, 2820x. ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये हो गया टोटल मार्क्स. पुट देयर वैल्यूज. टोटल स्कोर में ये वैल्यू आ जाएगा एंड टोटल स्टूडेंट्स में ये वैल्यू आ जाएगा. एज सिंपल एज इट इज. दिस इज 2820x अपॉन 100x. 28.2 was the answer. नहीं बेटा, यश ऐड कर. छोटू ऐड कर बेटा. 2100 plus 330 is 2430 plus 390 is 2820. Okay, so total score would be 2820 and total number of students are 100x. Solve करके या चलो. क्वेश्चन नंबर 18 दिया था आपको. क्वेश्चन नंबर 18 दिया था. क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, राइट. 4/5 को आपको कुछ भी डाउट होगा, यू कैन रीच मी आउट आफ्टर द सेशन. आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, होगा भी शायद, नहीं तो मिल जाएगा. यू गाइस कैन रीच मी आउट ओवर व्हाट्सएप, ओवर कॉल. ठीक है, डोंट वरी. कोई स्पेसिफिक डाउट है, यू वांट टू आस्क, यू कैन रीच मी आउट. Okay. Now, 4/5 of the voters in Amethi promised to vote Sonia Gandhi, and the rest promised to vote Sushma Swaraj. Amethi में, Amethi. Let us say total 100x voters थे. कितने वोटर्स थे? टोटल 100x वोटर्स थे. अभी अगर टोटल 100x वोटर्स थे तो इसमें से कितने लोगों ने प्रॉमिस किया सोनिया गांधी को और कितने लोगों ने प्रॉमिस किया सुषमा स्वराज को कि हम आपको वोट देंगे? सोनिया गांधी को और सुषमा स्वराज को. 4/5 of the voters they promised to सोनिया गांधी. मतलब 80x लोगों ने, 4/5 of 100x is 80x. 80x लोगों ने, 80x voters of Amethi, they promised that they will vote for Sonia Gandhi. And 1/5, that is 20x. 20x people, they promised that they will vote for Sushma Swaraj. ये given है question में. Okay. Now, of these voters, 10% of the voters who had promised to vote Sonia Gandhi did not vote. जितने लोगों ने सोनिया गांधी को प्रॉमिस किया था, ऑफ दीज वोटर्स 10% डिड नॉट वोट. इनमें से 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं. 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं. देखो, सोनिया गांधी को जितने लोगों ने प्रॉमिस किया था उसमें वोट एंड नॉन वोट 10% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं. तो व्हाट इज 10% ऑफ 80x? What is 10% of 80x? बोलो फटाफट. What is 10% of 80x? 10% of 80x is 8x. 8x लोगों ने वोट दिया ही नहीं. 72x लोगों ने वोट दिया सोनिया गांधी को. Similarly, 20% of the voters who promised to vote for Sushma Swaraj did not vote.
सुषमा स्वराज को 20x लोगों ने प्रॉमिस किया था, इसमें 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। व्हाट इज 20% ऑफ 20x? सुषमा स्वराज को 20% लोगों ने धोखा दिया, दैट इज 4x। सुषमा स्वराज को वोट मिला 16x। ओके, नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? What is the total number of votes polled if Sonia Gandhi got 210 नहीं 216 votes था? ये आपके बुक में होगा ये 216, यस और नो? ये आपके बुक में है 216, बुक चेक करो, यहाँ पे टाइपो एरर है, ठीक है? आपको जो बुक दी थी उसमें चेक करो 216 होगा ये। तो सोनिया गांधी गॉट 216 वोट्स, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सोनिया गांधी गॉट 216 वोट्स, इसका मतलब ये हो गया कि दिस 72x इज 216, दिस 72x इज 216, आया ना? 72x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 216, सो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 216 by 72 which is 3, 216 by 72 which is 3, so x की वैल्यू 3 मिल गई। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? डायग्राम में बताओ। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज 72x प्लस 16x। नहीं छोटू, इतने तो टोटल वोटर्स थे, इतने तो टोटल वोटर्स थे। वोट्स पोल्ड, इतने लोगों ने सोनिया गांधी को धोखा दिया, इतने लोगों ने ये, तो टोटल वोट्स पोल्ड तो ये है ना बेटा 72x प्लस 16x। वोटर्स थे 100x, 100x वोटर्स थे, मतलब 300 वोटर्स थे, 300 लोगों ने वोट नहीं दिया गोलू। वोट जो सोनिया गांधी को मिला है 72x और जो सुषमा स्वराज को मिला है 16x, तो टोटल वोट्स वेयर 88x। यस, टोटल वोट्स पोल्ड वेयर, टोटल वोट्स पोल्ड वेयर 72x plus 16x, 88x, where x is 3. So answer would be 88 into 3, 264. टोटल वोटर्स 300 थे, 36 लोगों ने वोट नहीं दिया, राइट? चलो, चमका ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चमका, चमक गया। चलो, very nice. Just in case if you are preparing for CAT, we have this batch, you can join this 125 days अगर आप CAT के लिए prepare कर रहे हो तो। चलो, let's move to next question, आ जाओ। Vimal's salary is 75% more than Kamal's salary, ठीक है? विमल की सैलरी जो है कमल की सैलरी से 75% ज्यादा है, ये ले लो कमल, ओके? ये ले लो कमल, ये ले लो विमल। विमल की सैलरी इज 75% मोर देन कमल सैलरी। कमल की सैलरी को बिफोर एंड आफ्टर में बात करते हैं, बिफोर आफ्टर। कमल की सैलरी को 100x बोलो, तो विमल की सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा? 75% मोर देन कमल सैलरी। विमल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 75% मोर देन कमल सैलरी। कमल की सैलरी, विमल की सैलरी हो जाएगी 175x, राइट? ऑसम। नाउ विमल गॉट अ रेज ऑफ 40%। विमल को 40% की हाइक मिली, विमल को 40% की हाइक मिली। 175x अभी है उसकी सैलरी, उसको हाइक मिली 40% की। तो व्हाट इज 40% ऑफ 175? व्हाट इज 40% ऑफ, एक मिनट,
चलो, what is 40% of this? 40% of 175x is 70. तो विमल की सैलरी आफ्टर द हाइक वुड बी 245x। और कमल को कितने की हाइक मिली? कमल को कितने की हाइक मिली? कमल को मिली हाइक 25% की। कमल की हाइक है 25% की, तो कमल की सैलरी हो जाएगी 125x। By what percent Vimal's salary is more than Kamal's salary? Percent change? By what percent X is more than Y? By what percent X is more than Y? Difference by reference multiplied by 100. बोलो हाँ जी। By what percent Vimal is more than Kamal? Difference by reference cross 100. Difference by reference cross 100. What is the difference? What is the difference? The difference is 245x minus 125x. रेफरेंस किसका लेंगे? लैंग्वेज से चेक करो। विमल मोर देन कमल। विमल कितना ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू कमल? कमल की सैलरी का रेफरेंस होगा विमल कितना ज्यादा है, विमल कितना बड़ा है व्हेन कंपेयर्ड टू कमल। अक्षेत, कमल का रेफरेंस देंगे छोटू। तो कमल इज 125x। डिनोमिनेटर में आएगा 125x। यू गोना मल्टीप्लाई दिस बाय 100, so this is 120x upon 125x. Multiply it by 100. This goes 24 by 25 times. This is 24 by 5 से गया ये. This goes in 4 times. 24 cross 4 is 96%. 24 multiplied by 4 is 96%. C was the correct answer. बोलो हाँ जी. C was the correct answer. चलो, let's jump to next question. The last question of percentage जो आपको होमवर्क दिया था बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था परसेंटेज में. वेरी नाइस. Okay. Give me a minute. A person started off a business with very little capital. Okay, तो ये हो गया principal. Earned a profit. ये हो गया profit. Spent 50% of the total. Okay, ठीक है, ये हो गया initial capital. उसमें profit earn किया. फिर ये हो गया होगा total. फिर खर्चा. What is left with? 1 2 3 4 5. Okay. तो इसमें देखो आपको समझाने के लिए what we will do. और ये कितने साल किया उसने? For this was followed for second and third year. Very nice. देखो गाइस, थोड़ा सा फोकस. आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट गया होगा. आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं केवल. ठीक है, देखो ये है मेरा फर्स्ट ईयर, ये है मेरा फर्स्ट ईयर, ये है मेरा सेकेंड ईयर, ये है मेरा थर्ड ईयर. ओके, ये है मेरा कैपिटल. लेटर से आपने 100x से शुरू किया. कितने से शुरू किया? 100x से शुरू किया. ओके, और आपने प्रॉफिट अर्न किया. यू स्टार्टेड विथ अ वेरी लिटिल कैपिटल. योर कैपिटल वाज 100x एंड दिस इज लिटिल. लेट्स अस्यूम इन द फर्स्ट ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50%. तो उसको फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 50%, मतलब 50x इसका प्रॉफिट हो गया. तो उसके पास कितना अमाउंट हो गया छोटू? उसके पास अमाउंट कितना हो गया? 100x तो उसका कैपिटल था, 50x का प्रॉफिट. उसके पास हो गया 150x. राइट नाउ ही स्पेंट 50% ऑफ द टोटल कैपिटल.
I mean, he spent 50% of this, okay, for the sake of his business. कितना खर्च कर दिया उसने? How much did he spend? He spent 75x ना, 50% of this, not 50x, 50% of this. So finally he is left with 75x. I mean, खर्च करने के बाद he is left with 75x. और फिर ये जो कैपिटल है, वो लेके चला गया वो सेकेंड ईयर में, सेम कैपिटल लेके चला गया वो सेकेंड ईयर में. It's mentioned in the question, the same procedure was followed in the second and the third year, and at the end of 3 years he was left with this much amount. Find the amount remained at him at the end of second year. ये जो पैसा है वो पैसा लेके वो इधर आ गया, अगेन कुछ हुआ होगा, और यहाँ पर उसको लेटर से y अमाउंट बचा, ये y लेकर इधर आ गया. ओके, अगेन सेम प्रोसीजर, 16875 यहाँ बचा. मतलब आपको ये y फिगर आउट करना था. बोलो हाँ जी, आपको y फिगर आउट करना था. 100x उसने शुरू किया, ओके, कुछ हुआ, 75x इधर आया, 75x सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आ गया. सेम ऑपरेशन, जो यहाँ 50% प्रॉफिट था उसका 50% खर्च किया, सेम चीजें यहाँ भी करी, और लेटेस्ट से यहाँ y बचा, ये y लेके आ गया होगा थर्ड ईयर में. सेम प्रोसीजर रिपीट हुआ एंड ही इज लेफ्ट विथ 16875. तो आपको y की वैल्यू निकालनी है. देखो y की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड ईयर का एंड या थर्ड ईयर का बिगिनिंग सेम है. तो मैं ये निकालू या ये निकालू, बात बराबर है. ये निकालू या ये निकालू, बात बराबर है. बोलो यस सर, बोलो यस सर. अब ध्यान से सोचो. मैंने फर्स्ट ईयर में आई स्टार्टेड विथ 100x, मेरे पास बचा कितना, 75x. मतलब हर साल कितना बच रहा है मेरा? नहीं, एसपीसी की जरूरत नहीं है छोटू. एक्चुअली आपने जिस कैपिटल से शुरू किया था ना, उसका 75% ही बच रहा है साल के एंड पे. आपने जिस कैपिटल से शुरू किया था, केवल फर्स्ट ईयर पे आप फोकस करो, केवल फर्स्ट ईयर पे फोकस करो. उसने स्टार्ट किया था 100x से, और बचा कितना है, 75x. यहां भी सेम प्रोसीजर. तो यहां भी उसने 75x से स्टार्ट किया था, इसका 75% बचेगा यहां पर. यस और नो? 75x से स्टार्ट किया था तो सेम प्रोसीजर है, तो y वुड बी 75% ऑफ 75x. मतलब 25% का लॉस हो जाता है जिस अमाउंट से आप स्टार्ट करते हो. ओके, आपने जिस भी अमाउंट से स्टार्ट किया, ईयर के एंड पे 75% ऑफ इट इज लेफ्ट. तो अगर आपने y से शुरू किया है तो कितना बचेगा, 75% ऑफ y बचेगा. कैन आई राइट 75% ऑफ y डायरेक्टली? 75% of y is 16875. Yes, you can. 75, आप जिस भी अमाउंट से शुरू कर रहे हो उसका 75% बचता है हर साल. तो हमें शुरू तक जाना ही नहीं है. फर्स्ट वाला हमने केवल किया समझने के लिए, फर्स्ट वाला इटरेशन हमने केवल किया समझने के लिए. ठीक है. एंड नाउ वी नो कि whatever capital you start with उसका 75% ही बचता है. तो 75% of this y is 16875. आप y के लिए सॉल्व करोगे तो your y would be 16875 क्रॉस 4 divided by 3, 5625. Okay, and this is your, yes, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 520, 22,500. This would be your answer. Option C. अगर आपने यहां से पूरा बैक ट्रैक करके सॉल्व किया होगा, बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा, राइट? So these were practice questions of classwork from percentages.
ठीक है। आई होप आपको समझा, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। आप एक बार वापस से क्लास वर्क के होमवर्क करना एंड होमवर्क के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करना। I am available for doubt clarification. You can reach me out over WhatsApp as well, या मैं डाउट सेशन भी क्रिएट कर दूंगा, और समटाइम आई विल विजिट इन योर कॉलेज। आप वन ऑन वन भी लाइव भी पूछ सकते हो। चलो एक बार फटाफट लिख दो हैशटैग समझा, देन वी विल मूव एंड स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्विकली गाइस, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। या तो इस टॉपिक को आज फिनिश कर देंगे, आज तो नहीं हो पाएगा बेटा, इसको आज शुरू करेंगे और कल फिनिश कर देंगे हम लोग, राइट? वेरी नाइस। देखो नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम आवर बुक्स इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम आवर बुक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगेन रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका थियरी, एंड देन हम क्या करेंगे, क्लास वर्क प्रॉब्लम्स, थियरी पार्ट। ओके, थियरी पार्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थियरी में है क्या, है क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थियरी में है क्या, ठीक है। देखो रेशियो में सबसे पहले आपको क्या क्या होना चाहिए, आपको क्या करना है। रेशियो में सबसे पहले आपको आना चाहिए स्प्लिटिंग ऑफ गिवन क्वांटिटी इन गिवन रेशियोज। रेशियो की थ्योरी में सबसे पहले है स्प्लिटिंग अ गिवन क्वांटिटी इन गिवन रेशियो। ये सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है, ये आपको सीखना है, हम सीखेंगे। दूसरा स्केलिंग ऑफ रेशियोज, स्केलिंग ऑफ रेशियोज, ठीक है। तीसरा अंडरस्टैंडिंग प्रपोर्शन, व्हाट इज प्रपोर्शन, अंडरस्टैंडिंग प्रपोर्शन, ठीक है। एंड एक और टॉपिक है, द फोर्थ वन इज इसमें ही है, फोर्थ वन इज टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। ये चार टॉपिक आते हैं थियरी में, ये चार टॉपिक आ जाएंगे थियरी में ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। पहला स्प्लिटिंग अ गिवन क्वांटिटी इन गिवन रेशियो, ठीक है। स्केलिंग ऑफ रेशियोज, ऑसम। अंडरस्टैंडिंग प्रपोर्शन, व्हाट इज प्रपोर्शन, टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो व्हाट इज प्रपोर्शन, ओके। एंड लास्ट वन वुड बी टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। ये चार चीजें हम लोग सीखेंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट विद स्प्लिटिंग ऑफ गिवन क्वांटिटी इन गिवन रेशियोज। ये काफी सिंपल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट, लेकिन फिर भी हम लोग सिंस वी आर डूइंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, हम लोग इसको करके देखेंगे, ठीक है। सो if you are said to split 30 in the ratio 2:3, I mean split 30 in the ratio 2:3, what would be the first part, what would be the second part, बताओ। what would be the first part, how to calculate it आपको पता होना चाहिए। what would be the second part, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, स्प्लिट 30 इन द रेशियो 2:3 कैसे करेंगे बेटा। देखो बहुत सारे तरीके हैं इसके, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप इसको आराम से ऐसे कर लो। फर्स्ट पार्ट, आपको फर्स्ट पार्ट बोला है, फर्स्ट पार्ट इज 2 आउट ऑफ टोटल 5, तो फर्स्ट पार्ट आप ऐसे कर सकते हो 2/2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 30, ओके, मतलब 2/5 क्रॉस 30, ये हो जाएगा 12, ओके। और सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट ये है ना, सेकेंड पार्ट ये है, तो 3 है, तो 3 अगेन टोटल 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड पार्ट। 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 30
18। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आप ना ऐसे देख लो, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। आप इसको अस्यूम कर लो द नंबर्स टू बी 2x एंड 3x। ये जो नंबर्स है ये 2:3 के रेशियो में है। आप अस्यूम कर लो कि मेरा फर्स्ट नंबर 2x है, सेकंड नंबर 3x है। आप अस्यूम कर लो कि आपका फर्स्ट नंबर 2x है और सेकंड नंबर 3x है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा छोटू? 2x plus 3x, which is given in the question to be 30. तो 5x 30, x again 6, x again 6। सेम तरीका है, रिप्रेजेंटेशन दूसरा है, ठीक है। x हो गया 6, तो माय फर्स्ट नंबर वुड बी 12, सेकंड नंबर वुड बी 18। इस तरीके से भी जा सकते हो। बोलो हाँ जी, बोलो हाँ जी। चलो ठीक है। हाँ, अब देखो, क्विकली कर लो, क्विकली कर लो। ओके, split 54 in the ratio 2:3:4। quickly कर लो and then we'll move to next concept. Split 54 in the ratio 2:3:4। quickly कर लो and then we'll move to next concept. Okay, ये मेरा first number हो गया। I'm asking you for the first number, I'm asking you for the second number, and I'm asking you for the third number. Same approach। first number क्या हो जाएगा बेटा? 2/2 plus 3 plus 4 multiplied by 54। सेकंड क्या हो जाएगा छोटू? सेकंड इज 3 ना, 3/2 plus 3 plus 4 multiplied by 54। और थर्ड क्या हो जाएगा? 4 ना, 4/2 plus 3 plus 4 multiplied by 54। this is 12, this is 18, this is 24। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो बेटा? फर्स्ट नंबर को आप अस्यूम कर लोगे 2x, सेकंड नंबर को अस्यूम कर लोगे 3x, थर्ड नंबर को अस्यूम कर लोगे 4x। इनका सम हो जाएगा कितना बोलो? 2x plus 3x plus 4x 9x, which is given to be 54। x हो जाएगा बेटा 6। तो नंबर्स हो जाएंगे 2 into 6, 3 into 6, 4 into 6। बोलो हाँ जी। 12, 18, 24। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। देखो, छोटा सा कंसेप्ट है, क्विकली सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है स्प्लिटिंग ऑफ गिवन क्वांटिटी इन गिवन रेशियोज, उस पर स्केलिंग ऑफ रेशियोज मैंने मेंशन किया है। एक छोटा सा कंसेप्ट और है क्या? कंपेयरिंग टू रेशियोज क्विकली। आप कैसे दो रेशियो को कंपेयर करोगे? चलो, इफ आई आस्क यू व्हिच वन इज ग्रेटर, 1/2 and 100/3, which one is greater? बोलो, which one is greater? Which one is greater? Hey, Jaggu, 1/2 is greater. Chotu, 1/2 is 0.5, 100/3 is 33.33। बोलू, ऐसा मत करो यार। This is as good as 0.5. This is 33.33। चलो देखो, इनमें ना आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि दिस वन इज ग्रेटर। बहुत आसानी से बोल सकते हो क्योंकि these values are very far apart। ये these are not even close। अगर आप 1/2 बोल रहे हो ये महापाप है। these values are not even close। ठीक है, बट अगर आपको
कोई क्लोजर वैल्यूज मिल जाए, जैसे अब इसका ट्राई करो, ठीक है, 4/15 एंड 5/19, ये तो हमने डेसिमल से आसानी से निकाल लिया। आप इसका डेसिमल निकालोगे तो एक तो इतना आसान नहीं है, मतलब निकल तो जाएगा व्हेन कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन, और डेसिमल में भी 2-3 तक सेम वैल्यूज आएंगे। सो अगर ऐसा कुछ गिवन है और क्विकली कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, कैसे निकालोगे देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, क्विकली कैसे निकालोगे। अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है ना, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 76 आया न्यूमरेटर पे, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आया। नाउ सिंस 76 इज ग्रेटर देन 75, 4/15 would be greater than 5/19. ओके, सिंस अभी देखो 19 4 जा, और न्यूमरेटर के साइड लिखना, 4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 19 से तो 4 19 76, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 15 से 75, 76 is greater than 75, hence 4/15 is greater than 5/19। यहां पर भी देखो आप कर सकते थे, यहां देखो ये था 3 into 1 is 3 and 2 into 100 is 200, 3 and 200। एंड एक और बात, केवल ये जो अप्रोच है ना, आपको ये नहीं बताता कि कौन सा बड़ा है, ये भी बताता है द मैग्नीट्यूड बाय विच वन इज ग्रेटर देन अनदर। जैसे 3 से 200 क्लोज टू 66 टाइम्स है ना, क्लोज टू 66 टाइम्स है, तो 100/3 इज क्लोज टू 66 टाइम्स ग्रेटर देन 1/2। जितने गुने से ये बड़ा होगा उतने ही गुने से ये भी बड़ा होगा। इस वाले में देखो 76 75 बहुत क्लोज है, इसलिए बेयर आईज से फिगर आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोज, 76 एंड 75। इनफैक्ट अगर मैं इसको ए का नाम दूं, इस वाले को ए का नाम दूं और इस वाले को बी का नाम दूं, तो ए इज ग्रेटर देन बी, a is greater than b by 76 minus 75 upon 75 into 100, मतलब 1/75 into 100, मतलब 100/75, मतलब 4/3, मतलब 1/3% से। This a is greater than b by 1/3%. This is 76, this is 75, 1 से बड़ा है, 1/75, डिफरेंस बाय रेफरेंस क्रॉस 100। गॉट इट? सो इस मेथड से आप ये निकाल सकते हो। ये आपके काम पे कब आएगा? अगर आपके प्लेसमेंट पेपर में या एग्जाम में 3-4 फ्रैक्शन दे दिए और उनको बोला असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उनको क्या बोला? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया असेंडिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और इनको बोला असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फ्रैक्शन में है, पांचों फ्रैक्शन में है। तो आप क्या कर सकते हो? अगर सिंपल वाले फ्रैक्शन है, अगर वैल्यूज बहुत क्लोज नहीं है, सिंपल वाले फ्रैक्शन है, तो आप उनका डेसिमल निकाल लो, ठीक है, और देख लो इसका आएगा 1.2, इसका आएगा 5.4, इसका आएगा 3.6, इसका आएगा 2.5, इसका आएगा 0.8। अगर इजी है डेसिमल निकालना, निकाल लो एंड देन आंसर मैच कर लो। अगर वैल्यूज बहुत क्लोज है वैल्यूज बहुत क्लोज है, तो क्या करोगे तुम? तो फिर बेटर है कि तुम ऑप्शन में चले जाओ, ठीक है। तुम यहां भी कर सकते हो, बेटर है तुम ऑप्शन में चले जाओ। ऑप्शन जैसे ए बी सी डी, ये अगर ऑप्शन ए में चले जाओ असेंडिंग ऑर्डर में, अगर ए आंसर है तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए, ये उसके बाद का, ये उसके बाद का, ये उसके बाद का, ये उसके बाद का। अगर ए आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा अगर, तो फिर आप क्विकली इन दोनों में चेक कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कौन सा बड़ा है, ये बड़ा आना चाहिए, फिर इन दोनों में देख लो ये बड़ा आना चाहिए, फिर इन दोनों में देख लो ये बड़ा आना चाहिए, फिर इन दोनों में देख लो ये बड़ा आना चाहिए। टाइम नहीं लगेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन आप मल्टीप्लाई करना है केवल।
कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्ट हुआ वो आंसर नहीं होगा, कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्ट हुआ वो आंसर नहीं होगा। इससे फास्ट मेथड है ये। आपको कंपेयर करने आता है फ्रैक्शन, आप और सपोज आपको फर्स्ट वाले में ही दिस ग्रेटर देन दिस मिल गया है, ये आंसर में सेट हो रहा है, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो, रुको मत। Am I clear with this? Am I clear with this? What I'm trying to say? अगर आपको एग्जाम में आ गया सिंपल वैल्यूज है, डेसिमल निकाल लो। सिंपल वैल्यूज नहीं है, सिंपल वैल्यूज नहीं है, आंसर उठाओ और चेक करना शुरू करो। राइट वाला लेफ्ट वाले से बड़ा होना चाहिए। विद इन 10 सेकंड आप एक चेक कर लोगे। क्या मल्टीप्लाई करने में टाइम थोड़ी लगेगा आपको, 14 होगा 7 होगा, तुरंत तुरंत मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते जाओ। जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है, सारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है, वो आपका आंसर हो गया। चल so this was comparison of two ratios, how you compare two ratios। अगर मैं आपसे बोल दूं अब कि गोलू बताओ तुम बताओ 7/13 एंड 11/20 कौन सा बड़ा है? 7/13 11/20 कौन सा बड़ा है? क्विकली सर, ये 140 है, ये 143 है, ये बड़ा है सर, 11/20 बड़ा है। ठीक है, मतलब खत्म। कितना टाइम लगता है? नहीं लगता है टाइम, राइट? यस सर। अब हम लोग बढ़ेंगे छोटू दूसरे कंसेप्ट पे, which technical is scaling of ratios। What we did till now from ratios is how to split a given quantity in given ratios and how to compare two ratios। Now we will move to scaling of ratios। Scaling of ratios, awesome। चलो बच्चा पार्टी, ये हो गया मेरा 5:10। दिस इज वन रेशियो, हाँ या ना? ये एक रेशियो है, ठीक है। टेल मी विच वन इज ग्रेटर, 5/10 और 4/8? ये मेरा पेरेंट रेशियो है, ये वाला जो है ना, ये मेरा पेरेंट रेशियो है, ये मेरा पेरेंट रेशियो है। मतलब द रेशियो वी कंसीडर्ड, द रेशियो गिवन इन क्वेश्चन, इनमें कौन सा बड़ा है? 5/10 बड़ा है या 4/8? 4/8 बड़ा है? बोलो। इक्वल है सर, ओके। अच्छा 3:6, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 3:6, 4:10, 5/10, सबसे बड़ा कौन सा है इन तीनों में? या फिर 6/12? इक्वल है, यस इक्वल है। 2:4, 1:2, ये सारे इक्वल है ना? 100:200, ये सारे इक्वल है। ये जो है ना, ये मेरा पेरेंट रेशियो था। ये जो रेशियोज है ना ऊपर वाले सारे, ये सारे स्केल्ड डाउन रेशियोज है। कौन से? ये सारे रेशियोज क्या है? स्केल्ड डाउन, और ये स्केल्ड अप। स्केल बढ़ाया हुआ है, केवल वैल्यू सेम है। ये सारे स्केल डाउन, ये सारे स्केल डाउन, और ये सारे स्केल अप। स्केल डाउन, स्केल अप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, बट अगेन एनालॉगस जिसको बोलते हैं, इक्विवेलेंस जिसको बोलते हैं, दीज टू वैल्यूज आर इक्विवेलेंट, मतलब ये दो वैल्यू सेम है। हम बोलते थे, हमने इसमें परसेंटेज में भी किया ना, इक्विवेलेंट, हाफ इज एज गुड एज 50%। इक्विवेलेंट वैल्यूज याद करो परसेंट फ्रैक्शन रिलेशनशिप में, तो वहां पर हम इक्विवेलेंट टर्म यूज करते थे, और यहाँ पे हम क्या टर्म यूज करते हैं? स्केलिंग। हालांकि दिस इज एज गुड एज इक्विवेलेंट रेशियोज, ओके। सो अगर आपने मैग्नीट्यूड कम किया है तो ठीक है, स्केलिंग डाउन करके मैग्नीट्यूड सेम है, स्केल डाउन किया है तो स्केल डाउन वैल्यूज और स्केल अप वैल्यूज, राइट। इफ आई फील द नीड, अगर मुझे जरूरत है, अगर मुझे जरूरत है, मेरे पास क्वेश्चन में 5:10 है, इफ आई फील द नीड, मैं 5:10 की जगह 8:16 लिख सकता हूं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। Scale up या scale values, if I feel the need, I can write them, I can use them। बोलो yes sir,
मैं 5:10 को 1/2 भी लिख सकता हूं अगर मुझे जरूरत है तो। सर इसकी जरूरत कहाँ आती है? इसकी जरूरत देखो, इस पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं 4 ऑप्शंस दूंगा, पोल आएगा आपके स्क्रीन पे, आप सॉल्व करो और आपके पोल में आंसर मार्क करो, ठीक है? मैं आपको कमेंट में आंसर नहीं लिखना है, आपको पोल में आंसर लिखना है, ठीक है? चलो, A:B गिवन है 2:3 एंड B:C गिवन है 4:5. Okay, what is A:B:C? ठीक है, आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 2:3:5, ऑप्शन दूसरा है 2:3:4, ऑप्शन तीसरा है 2:4:5, ऑप्शन चौथा है 3:4:5, ऑप्शन पांचवा है नन ऑफ दिस। ठीक है, आपके सामने पोल आया, ठीक है, चेक दिस आउट, आपके सामने पोल आया। पोल कितने देर का है? पोल है 75 सेकेंड्स का। चलो, मार्क योर आंसर्स इन द पोल, मार्क योर आंसर्स इन द पोल, whatever you feel like is the right answer, mark your answers in the poll. A:B है 2:3, B:C है 4:5. What is A:B:C? आपके सामने 5 ऑप्शंस है। ये स्केलिंग का क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, मतलब वो यूज करते हैं लेकिन कंसेप्ट नाम से पता नहीं होता। You got last 20 seconds. Nota. Yes, it says nota. None of the above. Nota means none of the above. Times up. देखो देखो, अगर नोटा भी आंसर बोलो, करेक्ट आंसर नोटा ही है, ठीक है? 30% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, 70% लोगों ने गलत आंसर दिया है। केवल 30% लोगों ने बोला कि सर दिस इज द राइट आंसर। 9% लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, ऑप्शन डी को। 29% लोगों ने सी को सपोर्ट किया। ऑसम। 13% लोगों ने बी को और ए को सपोर्ट किया, 17% लोगों ने। चलो देखो, देखो छोटे, इसका सॉल्यूशन आंसर इज नोटा। क्यों? क्यों? देखो, राइट हैंड साइड में हम सॉल्यूशन करते हैं। एक चीज तो पता है ना कि क्वेश्चन का डेटा वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि सर ए, ये 17% बच्चे ध्यान देंगे, ए आंसर है। आप बोलते हो A:B:C सर 2:3:5 है, ठीक है? मतलब A:B क्या हो गया? 2:3। आपके हिसाब से, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनके हिसाब से A:B कितना हो गया? 2:3, ठीक है? A:B तो 2:3 है, कोई दिक्कत नहीं। इन 17% बच्चों के हिसाब से B:C का आंसर क्या है? B:C का आंसर 3:5 है। A:B:C में A:B है 2:3 और B:C है 3:5। बट क्वेश्चन में B:C 4:5 गिवन है, एंड 3:5 और 4:5 ये तो सेम नहीं है, तो ये वायलेट करता है। ए इज नॉट द राइट आंसर। क्यों रॉन्ग है मैंने बता दिया। इसमें B:C क्वेश्चन का, हाँ, अगर आप यहाँ कुछ ऐसा लिख देते B:C 4:5 है, मुझे आंसर में 8:10 दिखता तो चलता, मुझे आंसर में 12:15 दिखता तो भी चलता, मतलब 2:15, हाँ, तो भी चलता। 4:5 को मैं इससे एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन 4:5 को मैं 3:5 से एडजस्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हो? अगर मुझे आंसर में B:C ये दिखता तो मैं बोलता चलो ठीक है, सेम बात है, सेम वैल्यू है। लेकिन ये 3:5 तो 4:5 के बराबर नहीं है बेटा, ये तो रॉन्ग है। अब बी वाले में भी सेम दिक्कत है।
B:C देखो, तुम्हारा 3:4 है आंसर में और एक्चुअल में 4:5 है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है A:B का। A:B आपके आंसर में 2:4 है, ठीक है, बट एक्चुअल में 2:3 है, तो ये भी सेम नहीं है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, निकाल दो। सिमिलरली 3:4 और 2:3 भी सेम नहीं है, निकाल दो। तो आंसर आ गया नोटा। अब नोटा में एग्जैक्टली आंसर क्या है? नोटा में एग्जैक्टली आंसर क्या है वो कैसे निकलेगा? देखो, अब नोटा में कैसे आंसर निकलेगा, ध्यान दो। A:B गिवन है 2:3, वेरी नाइस, ओके, और B:C गिवन है 4:5। मुझे निकालना है A:B:C, मुझे निकालना है A:B:C। अब मुझे अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है तो इन दोनों में कनेक्टिंग एलिमेंट क्या हो सकता है? क्या ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? अगर मुझे ए बी और बी सी को कनेक्ट करना है तो कनेक्टिंग एलिमेंट क्या होगा? कनेक्टिंग एलिमेंट बी होगा, ठीक है। बी का ए के साथ भी रिश्ता है, बी का सी के साथ भी रिश्ता है। अगर मैंने बी को फिगर आउट कर लिया तो बी को कंसिडर करके मैं ए की भी वैल्यू ले सकता हूं और बी को कंसिडर करके मैं सी की भी वैल्यू ले सकता हूं। बोलो यस सर। अब देखो, इस वाले में बी था 3, इस वाले में बी था 4, तो यहां पर बी क्या लेंगे सर? यहां तो बी की भी अलग अलग वैल्यूज है, हम ले लेंगे कोई भी वैल्यू, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए वुड बी एलसीएम ऑफ दिस। बी के 3 और 4 का एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 4? व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 4? एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12, तो हम इसको ले लेंगे 12, बी को ले लेंगे 12, या 12 का कोई भी मल्टीपल चलेगा, 12 ले लो, 24 ले लो, 36 ले लो, 12, और इससे क्या हो जाएगा? मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आंसर तो 10 लेके भी करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन तब ए और सी डेसिमल में दिखेगा। ओके, ए और सी क्या दिखेगा? डेसिमल में दिखेगा, राइट। दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अगर आंसर आपको मिले 1:2 या फिर 0.7:1.4, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ओके, दोनों सेम है। वही फर्क है, अगर आप 12 लेके करोगे आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, 12 का मल्टीपल लेके करोगे आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, और 12 का मल्टीपल नहीं लोगे, कोई रैंडम वैल्यू लोगे, तो आंसर तब भी आएगा, लेकिन आंसर तब डेसिमल में आएगा, रॉन्ग नहीं होगा, बस वो डेसिमल में होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो हाँ जी, यस सर। आंसर रॉन्ग नहीं होगा, बस वो डेसिमल में होगा, जो हमें नहीं चाहिए। आ जाओ करते हैं। नाउ A:B है 2:3। अगर B को 3 की जगह मैंने 12 ले लिया, B को 4 टाइम्स ले लिया, तो A भी 4 टाइम्स हो जाएगा। 2:3 वॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो यहां पर आपको 8 रखना पड़ेगा ना। अगर मैंने B को 4 टाइम्स लिया है तो A भी 4 टाइम्स हो जाएगा। बोलो हाँ जी। चलो A तो मिल गया मुझे, A मिल गया, B मिल गया, अब C चाहिए। अगेन C का रिश्ता भी B के साथ है। अगर B 4 था तो C 5 था, अगर B 4 था तो C 5 था, अगर B 3 गुना हो गया, 4 3 12, तो C भी कितना हो जाएगा? 3 गुना। ये 4/5 है, इसका वैल्यू भी 4/5 ही होना चाहिए। स्केल अप कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा 15। 4 को 3 गुना किया तो 5 को भी 3 गुना कर दो, ये भी 4/5 है, कोई लफड़ा नहीं। ये भी 2/3 है, कोई लफड़ा नहीं। ना A:B वॉयलेट हो रहा है, ना B:C वॉयलेट हो रहा है। बोलो हाँ जी, यस। आधी रात और आधी रात, मोहम्मद और कुरान ने तो पहले ही बोल दिया हाँ जी, वेरी नाइस। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। एंजॉयिंग से ज्यादा लर्निंग इट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। डू फोकस। चलो
तो ये है स्केलिंग ऑफ रेशियोज, ये है स्केलिंग ऑफ रेशियोज। इन सब के ऊपर आपके शीट में क्वेश्चन है, और इन सब के ऊपर क्वेश्चन जो आपके शीट में है वो मैंने लाइव भी रखा है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन जो आपके शीट में है उसका मैंने पीडीएफ भी बना लिया है ऑलरेडी। ओके, वेरी नाइस। कितना अच्छा लग रहा है ना, आप भी आराम से बैठे हो, मैं भी आराम से बैठा हूं। इसके फायदे क्या क्या है? फायदे अनेक, फायदे अनेक के फायदे सोचो, अगर तुम फायदे सोचोगे तो उससे दंग रह जाओगे। अभी सपोज मैं क्लास में अगर कोई टॉपिक 2 घंटे में खत्म करता, एक बैच को, टोटल 5 बैचेस है, 10 घंटे लग जाते। एक तो अपना काम 10 घंटे की जगह 2 घंटे में हो रहा है, और हम इसको और इंक्रीज कर सकते हैं ज्यादा कंटेंट देके। अब इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स हम लोग 3 घंटे में एक टॉपिक खत्म करेंगे ज्यादा कंटेंट देके। मतलब विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। स्टिल आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि आप एक नोटबुक बना लेना सेपरेट। चलो बच्चा पार्टी, तो अब हम बढ़ते हैं किस पे। हमने क्या क्या कवर कर लिया सर? हमने ये कवर कर लिया, स्प्लिटिंग अ गिवन क्वांटिटी इन गिवन रेशियो। हमने कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज भी देख लिया, कंपेयरिंग टू रेशियोज भी देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे स्केलिंग ऑफ रेशियोज। अब क्या देखेंगे हम? स्केलिंग ऑफ रेशियोज। स्केलिंग ऑफ रेशियोज भी देख लिया सर, सॉरी। अब हम बढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन, अंडरस्टैंडिंग प्रपोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि प्रपोर्शन है क्या। प्रपोर्शन है क्या, ठीक है। चलो आ जा। व्हाट इज प्रपोर्शन? प्रपोर्शन है क्या एग्जैक्टली? व्हाट इज प्रपोर्शन? ट्राई करो, एक्सप्लेन करो कमेंट बॉक्स में, कोशिश करो। अगर आपसे पूछा व्हाट इज प्रपोर्शन, हाउ डू यू डिफाइन प्रपोर्शन? इफ somebody asks what is proportion, how do you define proportion? देखो देखो, इमेजिन करो एक सिनारियो, ठीक है। इमेजिन करो एक सिनारियो, वैल्यू ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर। नहीं बोलो, नहीं बेटा। चलो मैं एक सिनारियो आपको बताता हूँ, आपको बताना है कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ओके, पार्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, यश हैज कम अप विद समथिंग वेरी नाइस। पार्ट ऑफ समथिंग 9, मोहम्मद पार्ट ऑफ समथिंग 9। देखो, इमेजिन करो कि एक दिन आपके पापा और मम्मी किसी काम से चले गए रिलेटिव के यहाँ। कहाँ चले गए? रिलेटिव के यहाँ। आज सुबह चले गए और बोले कि बेटा हम आएंगे कल सुबह, कल सुबह आएंगे, हम रात में नहीं आएंगे। और आपको क्या बोल कर गए? उनको आपकी चिंता होती है, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता होती है। उन्होंने आपको बोला कि छोटू सुनना बेटा, चावल बना लेना, सब्जी जो है ना, नहीं चावल बना लेना, तुम चावल बना के उसको नमक और चावल खा लेना घर में, ठीक है बेटा, बाहर मत जाना। तो आपकी मम्मा ने आपको सिखाया, आपकी मम्मा ने आपको सिखाया चावल बनाना। मम्मा ने बोला कि राइस ले लो, हर घर में एक मेजरिंग यूनिट होता है राइस का, ग्लास नॉर्मली। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक ग्लास बना रखा होता है, ठीक है। वो एक ग्लास पानी डालेंगे और उसी ग्लास से, मतलब एक ग्लास चावल उठाएंगे और उसी ग्लास से फिर पानी डाल देते हैं, अपना अपना मेजरिंग यूनिट है। तो मम्मा ने बोला कि छोटू तुम ना एक ग्लास चावल डाल देना, और पानी कितना जाता है एक ग्लास चावल में? जितना चावल है उसका, बोलो। अगर मम्मा तुमको सिखा रही है कि एक ग्लास चावल डाल देना और पानी कितना डालना, अक्षित बोल रहा है 2 ग्लास, 1.5 ग्लास, 1.5 ग्लास, 1.5 ग्लास।
मम्मा ने बोला कि 2 ग्लास पानी डाल देना। ठीक है, हमारा वाला चावल पुराना चावल है, पानी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो 1 गिलास चावल और 2 गिलास पानी डाल देना। ठीक है, चावल बन जाएगा, अचार और नमक के साथ खा लेना। लेकिन तुम तो ठहरे परदेसी, मम्मा ने तुमको बोला था, तुमने क्या किया? तुम्हें मौका मिला है, घर में कोई नहीं है। ठीक है, तुम क्या करोगे? तुम बुला लाओगे अपने 3 और दोस्त को, तुम बुला लेकर आ गए अपने 3 और दोस्त को। ठीक है, अब 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 3 और दोस्त आ गए। ये तो एक के लिए था, राइट? आगे 3 और दोस्त, आगे 3 और दोस्त। अब तुम टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग। तो 4 लोग हैं, तो तुमने राइस 4 गिलास डाल दिया। अब वाटर, वाटर अगर तुमने 2 गिलास डाला, तो इज दिस इन प्रोपोर्शन विथ दिस? जिस जिस प्रोपोर्शन में राइस है उसी प्रोपोर्शन में आपको वाटर भी डालना है ना। अच्छा, 4:2 प्रोपोर्शन में नहीं है, चलो 4:5 प्रोपोर्शन में है क्या? 4:5 प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं। अच्छा, 4:8 प्रोपोर्शन में है क्या? 4:8 प्रोपोर्शन में है क्या? सो ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू मेंटेन द सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया? रेशियो सेम रखना। यहां 1:2 का रेशियो था, यहां 4:8 सेम रेशियो रखना। अगर तुम सेम रेशियो मेंटेन करते हो, मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर तुम सेम रेशियो मेंटेन रखते हो, मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। बोलो यस सर। सो व्हाट इज प्रोपोर्शन नाउ? यहां से प्रोपोर्शन समझ के लो। इफ देयर आर 2 रेशियोज, पहला A:B एंड दूसरा C:D, इफ देयर आर 2 रेशियोज एंड दे आर इक्वल, एंड दे आर इक्वल, if there are 2 ratios, पहला है A:B and दूसरा है C:D, and if they are equal, they are said to be in proportion. A, B, C, D are said to be in proportion. समझ रहे हो? What is proportion? When 2 ratios are equal, they are said to be in proportion. Am I clear with this? Yes sir, you are clear with this. और इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं, स्पेशल साइन है इसका, ऐसे A:B C:D। बोलो हंजी। A:B C:D। अब समझा व्हाट इज प्रोपोर्शन? आपको रफली पता था प्रोपोर्शन, बस आपको वर्ड्स में, शब्दों में पिरोने नहीं आता था। नाउ यू नो कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ 2 रेशियोज आर इक्वल, दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग। ठीक है, नोमेनक्लेचर क्या होता है? ठीक है, इसके 2 नोमेनक्लेचर होते हैं। ओके, इसके 2 नोमेनक्लेचर होते हैं, हम लोग दोनों करेंगे। जैसे ये पहला A:B:C:D, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, सी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, एंड डी को बोलेंगे हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हो गया एक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। ओके, ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, सी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, एंड डी को बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। ये हो गया एक नोमेनक्लेचर। एक दूसरा नोमेनक्लेचर भी है। दूसरे नोमेनक्लेचर में येलो वाला फर्स्ट नोमेनक्लेचर है। दूसरे में इन दोनों को हम लोग बी और सी को बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं? मीन्स। और इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, बीच वालों को बोलते हैं मीन्स और कॉर्नर वालों को बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स। बोलो यस सर। मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स बोला मतलब कॉर्नर वाले, मीन्स बोला मतलब बीच वाले। ठीक है, एंड अगर प्रोपोर्शन में है 2 रेशियो, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। ठीक है,
You guys are well aware of this already. You guys are well aware of this already. अगर a is to b is to c is to d है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a by b equals c by d. तो a into d is equal to b into c, which is product of extremes is equal to product of means. ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना. अगर प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. देखो, अगर आपको बोल देंगे 2 3 5 8 आर दे इन प्रपोर्शन, अगर आपसे पूछा कि ये प्रपोर्शन में है क्या, तो आप क्या करके चेक कर सकते हो कि अगर ये प्रपोर्शन में होते, अगर ये प्रपोर्शन में होते 2 3 5 और 8, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन सेम होता. यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 16 है, प्रोडक्ट ऑफ मीन 15 है, ये प्रपोर्शन में नहीं है. समझ रहे हो बात? तो आप इसको किस तरीके से यूज करते हो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है. अगर मैंने आपसे बोल दिया कि गोलू 1 4 और 16 एंड 64 आर दे इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है क्या? आर दे इन प्रपोर्शन, तो हाँ जी, 64 into 1 is 64, 4 into 16 is, बिल्कुल सर. चलो, तो ये हो गया इनका और नोमेनक्लेचर. प्रपोर्शन. What is proportion? If two ratios are said to be are equal, they are said to be in proportion. और उनका nomenclature. Product of means is equal to product of extremes, and in a different nomenclature they are called first proportion, second proportion, third proportion and fourth proportion. कभी कभी क्या होगा, देखो जनरली तो ना ये ऐसा ही दिखता है, जनरली ये ऐसा ही दिखता है, a is to b is to c is to d, जनरली ये ऐसा दिखता है. कभी कभी क्या होगा, आपको केवल 3 दिखेंगे, ठीक है. कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा a is to b is to c, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन. इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन. और इसको कैसे ट्रीट करते हैं हम? अगर आपको ऐसा कुछ मिला, ऐसा कुछ दिखा, इसको कैसे ट्रीट करते हो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हो. सॉरी, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हो. आप इसको ऐसे ट्रीट करते हो, यू राइट इट एज a is to b is to b is to c and then normally. Okay, and then normally. बोलो यस सर, बोलो यस सर. ठीक है. a is to b is to c अगर दिखा आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी एक प्रपोर्शन है एंड दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रपोर्शन. और इसको आप ट्रीट कैसे करते हो? इसको मिडिल वाले को स्प्लिट कर देते हो आप, a is to b is to b is to c में. Okay, and then you work on it like we used to do for this one. Very nice, awesome. अब देखो, इसको आप चाहो तो फर्दर इसको कैसे क्या, इसमें आप एक डिडक्शन ये कर सकते हो, ठीक है. b square is equal to ac, b is equal to square root of ac, b is equal to square root of ac. ठीक है, आप चाहो तो ये कर सकते हो. मीन इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये कर सकते हो आप इस वाले में. हालांकि ठीक है, करना है तो करो, लेकिन बहुत इजी होता है ये. Okay, so we are done with understanding proportions now. We are done with understanding proportions. Okay, now the last part. Now the last part. Types of proportion. Types of proportion. Okay, types of proportion. चलो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं. What are the types of proportion? अभी तक हमने क्या क्या किया? अभी तक हमने किया थियरी में, पहले तो हमने 5 क्वेश्चन पीछे के सॉल्व किए परसेंटेजेस के. और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थ्योरी में व्हाट वी डिड, वी लर्न हाउ टू स्प्लिट अ गिवन क्वांटिटी इन गिवन रेशियो. फर्स्ट
हाउ टू कंपेयर टू डिफरेंट रेशियोज। ओके, सेकंड उस पे क्वेश्चन आता है, आपको 4-5 फ्रैक्शन दे देंगे एंड देन आस्क यू टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, स्केलिंग ऑफ रेशियोज आपको सिखाया, व्हाट इज स्केलिंग ऑफ रेशियोज। स्केलिंग ऑफ रेशियोज पे ऊपर क्वेश्चन आता है A is to B, B is to C दिया रहेगा तो A is to B is to C आपको निकालना होगा एंड सो ऑन। ओके, आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोपोर्शन हमने अभी कर लिया, व्हाट इज प्रोपोर्शन ये समझ के लिया, उसका नोमेनक्लेचर समझ के लिया। ठीक है, नाउ वी आर इनटू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। कौन से? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। फर्स्ट वन इज direct proportion, and second one is indirect or inverse proportion. Indirect or inverse proportion. There are two types of proportion. First is direct proportion, second one is indirect or inverse proportion. समझ के लेते हैं क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर समझ के लेते हैं व्हाट इज डायरेक्ट। अच्छा, इफ यू गाइस आर प्रेजेंट एंड पेइंग अटेंशन, ओके, हैशटैग यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, हैशटैग यस लिख दो कमेंट बॉक्स में। चलो बेटा आ जाओ, ध्यान दो। पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, हम लोग समझेंगे व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मान लो आपको मिल गई एक बताओ आपकी ड्रीम कार या ड्रीम बाइक, कोई बोलो आपकी ड्रीम कार या ड्रीम बाइक मिल गई आपको, बोलो एक नाम बोलो जो आपको पसंद हो। मेरे पास तो बेटा स्कूटर है, मेरे पास तो एक प्यारा सा कौन सा है यार, मेरे पास जुपिटर है, एस्टन मार्टिन, हीरो होंडा, मस्टैंग, एक्टिवा, चलो लूना, स्प्लेंडर, RX 100, मस्टैंग मिल गया, GT कॉन्टिनेंटल। ओके, सपोज आपको मिल गई मस्टैंग, आपको मिल गई आपकी मस्टैंग कार। ठीक है, ये आपकी है मस्टैंग, ऐसा आगे और ऐसा पीछे, और ये पहला नहीं चक्का, ये पीछे का चक्का और ये आगे का चक्का, ये आपको मिल गई मस्टैंग। पोर्श नहीं, मस्टैंग मिल गई आपको। ठीक है, अब मस्टैंग आपको मिली है कितने देर के लिए? मस्टैंग आपको मिली है 10 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए मिली है ये मस्टैंग? आपको किसने दी है? मैंने दी। मैं रखता हूँ जुपिटर, आपको दे रहा हूँ मस्टैंग। ठीक है, तो आपको 10 घंटे के लिए मैंने मस्टैंग दे दी। अब आप किस स्पीड से चलोगे बताओ मस्टैंग को? फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, आप किस स्पीड से चलाओगे? आपको मस्टैंग मिल गई 10 घंटे के लिए, अक्षित चलाएगा 60 के स्पीड से, मोहम्मद चलाएगा 150 के स्पीड से, ड्रिफ्टिंग 150 प्लस नहीं, एग्जैक्ट बताओ। अक्षित चलाएगा 60 के स्पीड से, ये चलाएगा अक्षित। मोहम्मद चला रहा है 150 के स्पीड से, उदित चलाएगा 200 की स्पीड से। मैं 5 लड़कों के नाम लिखूंगा, अलग अलग वैल्यूज। अमोल चलाएगा 180 के स्पीड से, अमोल चलाएगा 180 के स्पीड से। एक और कोई,
अंशुल चलाएगा 40 के स्पीड से। चलो, अगर अगर अक्षित ने 60 के स्पीड से चलाया तो अक्षित ने क्या डिस्टेंस कवर किया करेगा? अक्षित 600 किलोमीटर कवर करेगा। मोहम्मद कितने कवर कर लेगा? 1500 उसी टाइम में। उदित 2000 किलोमीटर 10 घंटे के लिए मिली ना, तो 10 घंटे में अक्षित 600 किलोमीटर, मतलब कहाँ चले जाएगा? इंदौर चले जाएगा क्या? पूना से इंदौर चले जाएगा। मोहम्मद 1500 किलोमीटर, ये पूना से चले जाएगा दिल्ली। उदित 2000 किलोमीटर, ये चले जाएगा गुवाहाटी। ये 1800 किलोमीटर, ये चले जाएगा पटना पूना से। और ये 400 ये नासिक जाके आ जाएगा। अंशुल नासिक जाके आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, द थिंग टू ऑब्जर्व इज कि अगर आपने स्पीड इंक्रीज करी तो डिस्टेंस भी, आपने जब स्पीड इंक्रीज करी तो डिस्टेंस भी बढ़ गया। आपने स्पीड वापस इंक्रीज करी, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। आपने स्पीड डिक्रीज करी, डिस्टेंस भी डिक्रीज हो गया। आपने स्पीड और डिक्रीज करी, डिस्टेंस और डिक्रीज हो गया। एनी सच रिलेशनशिप where if one quantity increases the other one also increases, if one decreases the other also decreases, ऐसे केस हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ओके, हियर वी कैन से स्पीड is directly proportional to distance. Speed is directly proportional to distance. A relationship where if one quantity increases, the other one also increases, and if the first decreases, the other decreases, vice versa. Such relationship is called direct relationship or direct proportion. So if there are two entities, x and y, related in such a way that if x increases, y increases, if x decreases, y decreases, they are said to be in direct proportion, and we can use x1 by x2 equal y1 by y2 in such cases. ओके, ये आपका टेक अवे है। अगर x is directly proportional to y, अगर x is directly proportional to y, तो x1 by x2 would be equal to y1 by y2। यहां देखो x1 by x2 क्या है? इस वाले में स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब s1 by s2 would be equal to d1 by d2। करके देख लो, अगर s1 by s2, ये s1 ये s2 लिया तो ये कितना होता है? 60 by 150, 2 by 5, तो ये भी 2 by 5। अगर ये 1 by 3 है तो ये भी 1 by 3। s1 by s2 would be equal to d1 by d2। समझ रहा है क्या गाइस? व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? समझ रहा है क्या? बिल्कुल समझ रहा है सर। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा हम देखेंगे कौन सा? इनडायरेक्ट और इनवर्स। इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, ये क्या होता है? अभी मान लो आपको जाना है मुंबई। मुंबई का डिस्टेंस पूना से कितना है छोटू? 200 किलोमीटर। सर नहीं सर, मुंबई तो 120-30 पे शुरू हो जाता है। मुंबई तो 120-30। सर हमारे इधर से ना, हमारा जहाँ कॉलेज है वहां से लोनावला लगभग 50 किलोमीटर है, और उसके आगे पनवेल जो है, वाशी और पनवेल, वहां से 60-70 किलोमीटर है। तो मुंबई हमारे कॉलेज से, लेकिन हम क्या 200 किलोमीटर। मुंबई बहुत बड़ा है, लास्ट तक तुम पुणे के दूसरे कॉर्नर से पकड़ो, इंस्टेड ऑफ इस वाले कॉर्नर से तुम सोचो तुम हडपसर से आ रहे हो, ठीक है, या खड़कवासला से आ रहे हो। इमेजिन कर लो, खड़कवासला सिंहगढ़ से आ रहे हो, तो और 30 किलोमीटर बढ़ा लो,
मांजरी से आ रहे हो, ठीक है, मांजरी पूना एंड देन उधर समुंदर का किनारा कौन सा है वो, जो भी हो, मुंबई का मैं हूं नहीं, मुझे पता नहीं है। सो तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस हमने अस्यूम कर लिया। अब 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 देखो, अब आप में से एक बच्चा जो है वो 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। आपको इस बार मिली है सादी सी जुपिटर बाइक, ठीक है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, ठीक है। मिस्टर ए को कितना टाइम लगेगा? मिस्टर ए को लगेगा जाने में, मुंबई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा। मिस्टर बी 100 की स्पीड से चलाता है, जुपिटर 100 की स्पीड से चला रहा है वो, उसको लगेगा 2 घंटा, ठीक है। ये मैं हूं मिस्टर सी, मैं चलाता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मुझे लग जाएगा 20 घंटा, ठीक है। और एक है मिस्टर डी, वो बोलता है सर मैं स्कूटर बगल में रख के स्कूटर पैदल लेके जाऊंगा यहाँ से वहां तक, वो चलता है 1 किलोमीटर पर आवर, उसको लग जाएंगे 200 घंटे। सो अब ये कैसा रिलेशनशिप है स्पीड और टाइम का? जब स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम, जब स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम घट रहा है, और जब स्पीड घट रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, उससे जो रिलेटेड चीजें घट जाती है, और एक चीज घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है। दिस इज सच अ रिलेशनशिप where if one quantity increases the other one increases, and if first decreases the other one increases. So such relationship is called indirect or inverse relationship, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, S is inversely proportional to time. Here speed would be inversely proportional to time. Acha, so if there are two entities x and y, such that if x increases y decreases, if x decreases y increases, such a relationship is called inverse relationship, and x would be inversely proportional to y, ठीक है। और ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, x1 by x2 इक्वल y2 by y1 उल्टा हो जाता है। ओके, ऐसे केसेस में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। बोलो यस सर। ये हमारा जो स्टार मार्क है वो टेक अवे है, जो स्टार मार्क है ना वो हमारा टेक अवे है। सो अगर क्वेश्चन में मेंशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2 ले लेंगे। क्वेश्चन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम x1 by x2 इज इक्वल टू y2 by y1 ले लेंगे, राइट। चलो चलो, so now we are done with the entire theory part. We are done with the entire theory part. Now we know कि हमें क्या करना है। अब हमें क्लास वर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और ये प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व नहीं करेंगे। We will solve them tomorrow. We'll start them tomorrow at 3:30. Okay. कल हम लोग 3:30 में प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का, और सेम डे में सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब जाने के पहले एक एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम छोटा सा, ठीक है, पजल जैसा है, फन पजल है, ठीक है। आपको वो फिगर आउट करना है वो कैसे हुआ, ठीक है। दैट वुड बी गिवन टू यू, और आपको वो सोचना है वो कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन इस एक छोटा सा गेम हम लोग खेलेंगे एक बच्चे के साथ, और बाकी सबको फिगर आउट करना है ये कैसे हुआ। जिसको पता है he will reach me out by any of the means and he will tell me the answer, ठीक है। how you can reach me out, रुक जाओ, how you can reach me out, let me show you। एक काम तुम ये कर सकते हो कि दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ओके। आप ये ज्वाइन करके मुझे यहाँ से पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या तो टेलीग्राम पे सर्च कर लो unacademy_आशीष, या ये स्कैन कर लो QR कोड, आप मेरे चैनल पे आ जाओगे, ठीक है। ये unacademy_आशीष चैनल का नाम है, या फिर आप स्कैन कर लो, ठीक है। आप उससे मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हैं आपके, और 1:1 आपको कुछ बातें करनी है आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मुझे किसी एक बंदे की जरूरत है, who will play with me। आप बताओ मुझे, एक लिख दो, #me लिख दो कमेंट बॉक्स में। I'll pick one of you, अतन, अंशु, प्रतीक। ओके, टेल मी योर डिपार्टमेंट।
टेल मी योर डिपार्टमेंट्स. प्रतीक, अतन, अंशु. प्रथमेश, अतन इज फ्रॉम कंप्यूटर. अतन इज फ्रॉम कंप्यूटर. चलो, अतन रिस्पॉन्डेड क्विकली. अतन विल बी प्लेइंग. ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व करोगे. सो अतन, देखो, अतन विल बी गिविंग मी 5 लेटर वर्ड या 6 लेटर वर्ड, मर्जी उसकी. 5 लेटर का दो, 6 लेटर का दो, 7 लेटर का दो, कोई भी एक वर्ड दो अतन, तुम्हारी मर्जी से. कमेंट बॉक्स में लिख दो, तुम्हारी मर्जी से. अतन, तुम्हारी मर्जी का कोई भी एक वर्ड लिख दो, मतलब नंबर लिख दो. 5 लेटर, 5 नंबर्स का, 6 नंबर्स का, 7 नंबर्स का, किसी भी नंबर का. चलो क्विकली. अतन, यू नीड टू रिस्पॉन्ड क्विकली बेटा. क्विकली क्विकली क्विकली. रैंडमली कुछ भी दो, तुम्हारी मर्जी. नंबर मतलब जैसे 7 4 5 5 3 6 या फिर 7, कोई भी एक नंबर. चलो साहिल, चलो अनमोल ने दे दिया. अतन, अतन की लेंगे हम. अतन की हमने बोल रखी थी. ठीक है. अधीरथ तो बहुत बड़ा दे दिया. ठीक है. अतन देखो, 97427. 97427. ओके. अतन, ये अतन ने दिया है. ठीक है, ये दिया है अतन ने. अतन बेटा, 5 डिजिट का ये था. 5 डिजिट का कोई भी रैंडम वर्ड वापस दो. 5 डिजिट का कोई भी रैंडम वर्ड वापस दो. अतन, 65966. 65966. 34033. मैंने भी दे दिया ये. अतन एक लास्ट टाइम. ठीक है, अतन एक लास्ट टाइम. कुछ भी एक रैंडम दो क्विकली. 5 81236. 81236. एक वर्ड एक मैं भी लिख देता हूं. ठीक है, 18763. चलो हो गया. अतन ने दिया, मैंने दिया. गाइस आप लोग इसको ऐड करो, इन पांचों को ऐड करो. अगर आपको पता है तो लेट मी आउट, रीच आउट करो. एंड इट्स नॉट मैजिक. मैजिक नहीं है. आपको इसके पीछे का लॉजिक निकालना है. ये तो आपका होमवर्क है. ये तो आपका होमवर्क है. इट्स नॉट मैजिक. चलो आप लोग इसको ऐड करो. कैलसी यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है कर लो. ये है, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है. एंड दैट आंसर इज 297425. ये ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही, ये कब लिखा था, देखो आंसर ये है ना जो आपके राइट साइड में दिख रहा है. आंसर है 297425. और ये आंसर मैंने कब लिखा था, ये आंसर मैंने कब लिखा था, जब अतन ने पहला नंबर लिखा था तब लिख दिया था. उसके बाद अतन ने 2 और नंबर लिखे. उसके बाद अतन ने 2 और नंबर लिखे. आई होप अतन इज अ रियल स्टूडेंट. आप लोग जानते हो अतन कौन है. ये मत बोलना कि सर अतन आपका लड़का है, अतन कोई नहीं है, अतन को आपने सेट करके रखा है. जैसे आईफा अवार्ड में होता है, जैसे जी अवार्ड में होता है, शाहरुख खान को ही मिलता है. ठीक है. तो मैंने आंसर लिख दिया था फर्स्ट वाले पे ही. उसके बाद अतन ने 2 और लिखे. और मैंने सोचा नहीं, मैंने बहुत फास्ट लिखे थे. मैंने जो 2 लिखे वो बहुत फास्ट लिखे थे. ठीक है. तो आपको फिगर आउट करना है, ये टोटल सेम कैसे आ गया. आपको ये 297425 आपको ये सॉल्व करना है. और जिन लोगों को लगता है कि उनको समझ में आ चुका है एंड दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, ठीक है, मैं उनको अभी एक मौका दे रहा हूं. ठीक है, मैं एक नंबर लिख रहा हूं. जिनको लगता है समझ में आ गया है वो आंसर लिख देंगे. अगर मैं चलो रैंडम 38496. ठीक है, 5 डिजिट का ही. इसका आंसर क्या आएगा. चलो जिन लोगों को लगता है उनको आता है
वो मुझे इधर ही आंसर बताओ। उसके बाद मैं एक और लिखूंगा, ये मैंने लिखा, फिर मैं वापस लिखूंगा, फिर तुम लिखोगे, फिर मैं लिखूंगा, फिर तुम लिखोगे। ठीक है। अमोल सेज 238494, आकांक्षा सेज 238494, और ये दोनों का राइट है, दोनों का सेम है तो ऑब्वियसली राइट होगा 238494। जिनको नहीं क्लियर है वो इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। नंबर्स है, बेसिक नंबर्स है, आप अगर इस पे दिमाग लगाओगे, नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी यूज है, ठीक है, आपका स्किल और बढ़ेगा। चलो, जब मैंने बोल दिया सही है तब तो आप वो करोगे यार, आ जाओ। ठीक है, तो इसको आपको फिगर आउट करना है। मैं किसी क्लास में इसका धीरे से लॉजिक बता दूंगा। ठीक है, फॉर द टाइमिंग विल स्टॉप हियर फॉर द डे, विल मीट टुमारो अगेन एट 3:30 PM, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास वर्क के क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास वर्क के क्वेश्चंस। टिल देन, signing off guys, we'll meet again tomorrow. If you want to reach me out for any of the reasons, ये स्कैन कर लो QR कोड, या फिर unacademy_आशीष सर्च करो टेलीग्राम पे, you will reach to my channel, और हम लोग बातें कर सकते हैं, नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं वहां पर। चलो बच्चा पार्टी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन, विल मीट अगेन टुमारो। लिंक आपको आपके ग्रुप पे मिल जाएगा। राइट, एक बार फटाफट लिख दो टाटा बाय बाय एंड एंजॉय योर रिमेनिंग डे। टाटा बाय बाय लिख दो कमेंट बॉक्स में एंड एंजॉय योर रिमेनिंग डे। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चल बच्चा, मिलते हैं कल, ठीक है, 3:30 बजे शार्प। टाइम पे आ जाना। Enjoy your remaining day यार, very nice, very nice. Unacademy. Let's crack it.